So hello everyone, welcome back to this channel. I am starting a focus PYQ series of polity section for CAPF 2026. So in this video we're going to cover the polity PYQs of CAPF 2024. Around 8 to 9 questions were asked in 2024 and in 2025 approximately 4 to 5 questions that was asked, and we can't say about the 2026, but yes, we have to cover this section. So in this series we won't just solve the questions, but we'll go deeper into each options and understand the actual meaning behind it. Also learn how UPSC frame traps. It use exclusive words, so we'll see also. So the idea is very simple, not just what is correct but why it is correct, and also very most importantly why other options are wrong, because we'll cover previous year questions year wise, and later on we'll also cover topic wise, but firstly we focus more on yearly wise, and then the concept which is explained in very clear and simple language, and also the option elimination technique I'm going to use in this. So important facts, tricks, and the value addition for your exam. So let's start with the first question. Under which one among the following article of the Constitution the seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in every municipalities? So if we talk about the schedules, so total we have 12 schedules, and 73 and 74 Constitution Amendment Act we have added 11th and 12th schedule. 11th शेड्यूल हमें पंचायत के बारे में बताता है एंड 12th हमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है. सो इफ़ यू नो द ट्रिक, हमें पता है कि शेड्यूल्स के लिए हमारे पास होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. So we have first T, we have territory, E for emoluments, A for oaths and affirmation, R for Rajya Sabha ki seats, S for we have some other states, O for other states, and then F we have federation. Next O we have simply other states, and L we have land reforms, and then D we have anti-defection law, and P for we have panchayat, and M for municipalities. So these are all 12 schedules, right? So in this question they have asked ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमें सीट्स देता है रिजर्व, जो कि SC और STs के लिए हो हर एक म्यूनसिपैलिटीज़ में. ये म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर रहा है, ना कि पंचायत की बात कर रहा है. बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस, सो वी हैव सम अदर आर्टिकल्स. मैं तुम्हें सिंपली ट्रिक के बारे में बताऊंगी, ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट सम आर्टिकल्स, first we have 243I, 243K. I is for income and K is for कौन बनेगा सरपंच. So income comes under State Finance Commission, right? And K कौन बनेगा सरपंच, right? We have it comes under State Election Commission. 243K. Okay, next we have article 243 RST. 243 RS and T. Simply S, it covers SC and STs की seats को reserve, but if we talk about ST, it usually talk about tribes of municipalities. But if we talk about R, it usually talk about reservation for panchayats.
but here reservation for municipalities and here is पंचायत. So अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली एस आर्टिकल की, ठीक है, 243S वो हमें बताता है SC और ST के बारे में, बट हमें रिजर्वेशन के बारे में बताता है 243R एंड 243T. 243R जो आर्टिकल है हमें बताता है बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ पंचायत्स एंड 243 जो है T हमें बताता है ट्राइब्स किसकी, म्यूनसिपैलिटीज़ की रिजर्वेशन के बारे में. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन फॉर SC STs और म्यूनसिपैलिटीज़. तो इसका आंसर हमारे पास 243 इज़ द राइट आंसर. अब नेक्स्ट आर्टिकल लास्ट जो बचा हमारे पास वो किसके बारे में बताता है, बेसिकली हमें ड्यूरेशन, डिसोलेशन और इलेक्शंस के बारे में बताता है SC STs के. ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं. सिंपली वी हैव हाउ मेनी शेड्यूल्स, वी हैव 12 शेड्यूल्स. टीयर्स ऑफ ओल्ड PM इज ए ट्रिक, 73 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट. 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है. 11 शेड्यूल टॉक अबाउट पंचायत एंड 12 शेड्यूल टॉक अबाउट म्यूनसिपैलिटीज़. नेक्स्ट वी हैव some articles related to reservation of scheduled caste and scheduled tribe in every municipalities. So we have article related to scheduled caste and scheduled tribe. 243I, I is for income, it comes under state finance. And 243K, K means कौन बनेगा सरपंच, it comes under state election commission. And then we have 243R, S, T. S is simply SC STs के बारे में बताता है, but if you talk about R and T, ये रिजर्वेशन देता है हमें पंचायत की और T हमें रिजर्वेशन देता है म्यूनसिपैलिटीज़ की. और इससे हमारा आंसर हो जाएगा 243T. ठीक है, हमें बताता है रिजर्वेशन टू म्यूनसिपैलिटीज़. बट इफ़ यू टॉक अबाउट 243ZA सिंपली हमें बताता है डिसोल्यूशन, ड्यूरेशन और इलेक्शंस के SC ST पे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is in our correct? Abolition of the Official Secrets Act 1923 was recommended by Second Administrative Reform Commission. एब्सोल्युटली इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बट हाँ सिंपली इसको अबॉलिश कर दिया गया था. एक एक्ट आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923. ठीक है, इसने क्या रिकमेंड किया था, इट वाज रिकमेंडेड बाय सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज़ RTI एक्ट इनेक्टेड इन 2005. ये बहुत बेसिक है. RTI एक्ट को इनेक्ट किया गया था सिंपली टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, राइट, ट्रांसपेरेंसी. तो ये दोनों की बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The Muddiman Committee recommended the separation of accounts from audit as a necessary financial reform. सिंपली देखो क्या बोला इन्होंने. एक मुद्दिमन कमेटी थी जिसने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स को. देखो जो अकाउंट्स बनाएगा उसको ऑडिट से तो सेपरेट करना पड़ेगा ना. एक कमेटी तो बनाई नहीं जाएगी इसके लिए. तो एक जर्नल स्टेटमेंट है. तो अगर तुम बेसिक नॉलेज से भी इसको करेक्ट करने की सोचोगे, देखो एक मुद्दिमन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था किसको सेपरेट करेंगे, अकाउंट्स को सेपरेट करेंगे ऑडिट से एज ए नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म. देखो एक साथ तो रखेंगे नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि जो अकाउंट बना रहा है वही ऑडिट कर रहा है, सिंपली जो पेपर बना रहा है, ठीक है, और वही पेपर लिख रहा है. देयर शुड बी सम सेपरेशन बिटवीन बोथ ना. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप ऑन द लाइन्स रिकमेंडेड बाय डॉक्टर पॉल एच एप्लेबी. क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देखो अगर हम बात करें एक्ट की, मुद्दिमन कमेटी वॉज सेटअप टू रिव्यू, क्या रिव्यू करने के लिए, डायर की, किसके अंदर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, इन्होंने एक और रिफॉर्म किया था, सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट. बिल्कुल सही बात है, किसके लिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए. नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात करें, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सेटअप किया था किसकी रिकमेंडेशन से, डॉक्टर पॉल एच एप्लेबी. ठीक है, ये कब हमारी फॉर्म हुई थी, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1954 एंड इट वॉज बेस्ड ऑन डॉक्टर पॉल एच एप्लेबी. कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या एम्फोसाइज़ किया था? बेसिकली इन्होंने ये एम्फोसाइज़ किया था कि देयर शुड बी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इन्होंने सिविल सर्वेंट्स के बारे में बताया था कि उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको एक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ करेक्ट। अगर मैं तुम्हें RTI एक्ट के बारे में बताऊँ अगर ज़्यादा थोड़ा डिटेल में, तो सिंपली RTI एक्ट जो है वो लिंक है हमारा आर्टिकल 19(1) के साथ, जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। ठीक है, और अगर मैं बताऊँ तुम्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में, तो ये अभी भी फोर्स में है, स्टिल इन फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस वेदर ऑफ यूनियन और स्टेट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो देखो, इसमें ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रोटेक्ट करता है सिविल सर्वेंट को फ्रॉम अनलॉफुल डिसमिसल, मतलब कोई भी उन्हें जाके रिमूव कर देगा, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर मैं बताऊंगी। उससे पहले हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सिंपली आर्टिकल 309 हमें किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 309 हमें रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के बारे में बताता है कि हाँ, जो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। बट आर्टिकल 311 हमें क्या बताता है? सिंपली हमें बताता है कि हम इस सेफगार्ड करेंगे सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे? बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर 315 की बात करें तो हमें किसके बारे में बताते हैं? देयर शुड बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन। हमें UPSC के बारे में आर्टिकल 315 की पता लगता है। ठीक है, या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 320 हमें बताता है किसके बारे में? हमें एग्ज़ाम्स के बारे में बताता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट या फिर फंक्शंस के बारे में बताता है कि फंक्शंस कैसे होंगे हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के। प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर आर्टिकल 311। इट सेफगार्ड द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम द अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो अगेन हम अगर बात करें आर्टिकल 309 की, तो ये बताता है हमें रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो आर्टिकल 309 ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। आर्टिकल 309 हमें बताता है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आर्टिकल 315 हमें सिंपल बताता है कि देयर शुड बी ए UPSC, देयर शुड बी ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट 320 बताता है कि क्या फंक्शंस होने चाहिए हमारे एग्ज़ाम्स के। नेक्स्ट आर्टिकल 311 हमें सेफगार्ड करता है कि हमें कोई भी आके रिमूव नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड डिसमिसल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कमीशंस दिए हैं ये जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इन्होंने ऐसे मतलब ये सिंपली सारे के सारे कमीशंस थे। ये जो कमीशंस इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे कि एग्ज़ाम्स में ये होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में मेडिकल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो, एग्ज़ाम्स में आर्ट्स जो था उसको थोड़ा कम प्रायोरिटी नहीं, बट हाँ सिंपली पहले क्या होता था कि सारे के सारे सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम्स में आर्ट्स सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता था। बट व्हाट हैपन, कुछ रिफॉर्म आए। कौन सी कमीशन आई, उसके कौन सी कमेटी ने ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लेके आई जिन्होंने बोला कि देयर शुड बी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, हम वो भी चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, बोला कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज में आफ्टर क्लास 12। वो किसने बताया? उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी असेसमेंट भी होना चाहिए। और कुछ कौन सी कमीशन ने बताया कि देयर शुड बी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। बट क्या उन्होंने बोला कि प्रीलिम्स के बाद एक मेंस का भी होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ कमीशंस हैं, ये बहुत ही मतलब सिंपल है। तो कोठारी कमीशन ने हमें बताया था कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं। ठीक है, सतीश चंद्र कमेटी के बारे में बताएंगे। एंड PC होटा कमेटी थी, और ऑल्सो हमारे पास अलग कमेटी भी थी। ठीक है, अब अगर बताएं हम प्रोफेसर अलग कमेटी में, इन्होंने बताया था कि हाँ कुछ पर्सनालिटी असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने क्या बताया था? D का 3 हो जाएगा। ठीक है, D का 3 है तो मतलब D का 3, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। राइट, नेक्स्ट इज
पीसी होता कमेटी ने क्या बताया था, पीसी होता ने कमेटी में बताया था कि सिंपली एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज का आफ्टर क्लास 12, बट ये फेल हो गया था, बट हाँ इन्होंने बताया था। सो सी का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें 2 भी पता है तो तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल ही तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोठारी कमीशन ने हमें बताया था कि एक मेंस का एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सतीश चंद्र ने बताया था कि हाँ मेडिकल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करो, ठीक है, और इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड करो, ठीक है। पीसी होता कमेटी ने बताया था कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज आफ्टर क्लास 12, लेकिन बाद में कुछ कमीशंस आए, उन्होंने बोला कि नहीं नीट होता है, जेई होता है, बट हाँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इन्होंने ये बताया था पीसी होता कमेटी ने। बट प्रोफेसर ये वाई के अलग कमेटी ने कुछ अलग ही बताया था। क्या अलग बताया था कि बोला कि हाँ सब कुछ होता है, बट हाँ एक असेसमेंट भी होना चाहिए, एक इंटरव्यू की टाइप पे कुछ चीज़ होनी चाहिए, एक पर्सनालिटी की असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने मेथडोलॉजी बताई थी उसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज़ एन आर करेक्ट। तो फंडामेंटल पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि राइट है, हमें देखेंगे ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। सही बात है क्या, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली जैसे कि जो कुछ राइट्स होते हैं वो सिर्फ स्टेट के लिए होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 वो इक्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 14 राइट, तो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, तो ये स्टेट के लिए ही है, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट के लिए हैं। आर्टिकल 19 हो गया, ये हमें फ्रीडम के बारे में बताता है, ठीक है, ये ओनली अगेंस्ट स्टेट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली। ये तो पता ही है कि जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, एंड 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, तो ये सिटीजन्स के लिए ही हैं, ओनली सिटीजन्स के लिए आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 इज़ ओनली फॉर सिटीजन्स नॉट फॉर फॉरेनर्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अगर 1 और 2 है तो मतलब 3 भी स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे कि सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स। क्या बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, तो ये जो है हमें देखो अनटचेबिलिटी स्टेट के लिए भी है, अनटचेबिलिटी हमारे एक इंडिविजुअल के लिए भी है, ठीक है। एक और आर्टिकल 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्राइवेट पर्सन ऑल्सो, ये कोई प्राइवेट पर्सन को भी एप्लीकेबल है। तो not both but all statements are correct. Option number 1, 2 and 3 is correct. Now move to next question, last not the least, who among the following president of India sent back the post office amendment bill। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट ने पोस्ट ऑफिस का ये बिल आया था इन 1986 फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सिंपली अगर मैं बताऊँ ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है, हमें उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिसने एक पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है। क्या होता कि इन 1986 में एक पोस्ट ऑफिस का बिल आया था, ठीक है। इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट एट दैट टाइम कौन, ज्ञानी ज़ैल सिंह, ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। इन्होंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे विद द गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय द राजीव गांधी, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द एसेंट उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था इमीडिएटली, ठीक है। तो एक कुछ विटोज़ होती हैं हमारे पास, विटो पावर होती हैं, तो उन्होंने एक पॉकेट वीटो पावर थी, ठीक है। पॉकेट वीटो पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट जो होता है वो बिल को पेंडिंग रखता है इंडेफिनिटली टाइम के लिए, मतलब वो ना साइन करता है ना ही रिजेक्ट करता है, अपनी पॉकेट में जाके छुपा के रख लेता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि सेंट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन, सो ही डिड नॉट फॉर्मली सेंड इट बैक, बट हाँ इन्होंने कुछ सस्पेंसिव वीटो लगाई थी, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। सो सिंपली ज्ञानी ज़ैल सिंह वॉज द राइट आंसर, गॉट इट। सो इंडियाज़ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल वीटो
इज़ 1986 के जो पोस्ट ऑफिस बिल था, ठीक है, वेयर ज्ञानी जैल सिंह used pocket veto and you can say suspensive veto, keeping the bill pending instead of signing it. So हमारे पास कुछ वीटोज़ होती हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है, तो ये कुछ वीटोज़ होती हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी के 2024 के ऑप्शंस और आंसर्स. आई होप यू मे लाइक्ड इट.